So I hope the format of P&L and the balance sheet is perfectly clear. Okay. So today we will be going directly to the numerical part, and slowly and gradually we will be discussing each and every head of the balance sheet also. What item comes in share capital, what comes in reserve surplus, what comes in long-term borrowing, etc. Okay. Let's start with the easiest question. Page 19 come. Come to page 19. Bishop book का है घर में. Very good. बैठो पीयूष के साथ. Sit with पीयूष और बैठ जाओ ऊपर पीयूष के पास बैठ जाओ ना. एक ही बात है. पीयूष is a good guy. Don't worry. He doesn't belong to the category of Karan Johar. ठीक है. चलो. Question number 12. जो ठीक है. Following is the trial balance of Sona Limited. मिल गया बेटा क्वेश्चन. ठीक है. पहले इजी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, then slowly and gradually will increase the level. Right. Stock on 1st April 13. How much it's given? 75. Very good. Purchase returns how much? 10. Purchase and sale 219 and 340. Sales return is 1500. Wages is. Now there is no confusion. Direct, indirect. Wages, it's an employee expense, has to be a part of E. And remember in P&L the trick was RO, revenues and other income. Then CPC, EFDO. Can Parliament change education for daily officers? Alright? Sure. Then we have discount. Tell me, this is income or expense? Discount. Income. Credit side. Discount received हो गया बेटा? Good. Then we have furniture fittings. How much? Has to be a part of fixed asset. Yesterday when we did the asset side, I told you fund low. FNDLO. Under fixed asset, I told you 4 parts. TICI. TICI. T was tangible, right? Because इस chapter में slowly and gradually will move. सिर्फ हमें formats एक बार mind में set करने हैं बस. T is tangible. So furniture fitting will be recorded in tangible asset. ठीक है. ये हम सबको याद है. ट्रायल बैलेंस का पार्ट सिर्फ एक ही जगह आएगा. It will only be recorded once. Next we have salaries. How much? 45,000. Where? Tell me. Employee benefit expense. Very good. Next. Advance tax. ठीक है. This I'll tell you today. Advance tax I'll tell you. Bad debts 4050. Bad debt we have discussed yesterday. Other expenses, right? So one advance tax was a new item which is there. Okay, this we'll discuss today. Then we have preliminary expenses. This I will be discussing it today. It's a major item to be discussed. Okay, so बात कर लीजिए. So advance tax and preliminary expenses we will be discussing it today. Then we have P&L appropriation. See, P&L appropriation account is 14,000. It is what? It's an opening balance of P&L. When we are giving the dividend, we not only give dividend from current year plus last year profit. अगर इस साल मेरे बैंक में 100 rupees already है, 80 I have earned it, so total becomes 180. Share capital, where liability side under the heading capital. Then we have calls in arrear. Calls in arrear, even though recorded on debit side, calls in arrear means those people who have not paid out money. While preparing the balance sheet, calls in arrear is always subtracted from share capital so that we can get the paid up capital. Right? Debtors and creditors. Debtors is a trade receivables and creditors is trade payables. Book का क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है. Plant and machinery. Tell me. Very good. Tangible asset बेटा. बिल्कुल ठीक है. Cash at bank. Cash and cash equivalent. Good. Patent and trademarks. Intangible. So only there were 3 items where we got stuck. You can say one was advance tax, one was preliminary expenses, and one was call in arrears. Comfortable यहाँ तक? We have not discussed advance tax. We have not discussed preliminary expenses. अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ. But P&L appropriation yesterday we have discussed. Now P&L appropriation is not prepared separately. It is shown as a part of reserves and surplus. So today I'll teach you how to prepare P&L appropriation also. We discuss it. Okay.
चलिए, now we have some adjustments. Just see, they are saying prepare trading account, P&L account and P&L appropriation. Now these three are combined as statement of profit and loss. Now we are doing question number 12, page 19. And balance sheet at that date, taking into consideration the following adjustments. Closing stock is 88,000. Make a provision for income tax. How much? 50%. Yesterday we have done that. Okay, beta. Depreciate plant machinery by how much? 15%. Director proposed a dividend of how much? 15% per annum. A claim of 25,000 for workman compensation is being disputed by a company. Stock we have done it, provision we have done it, depreciation. Proposed dividend is a new point. This I'll teach you today. Right? Claim of workman compensation is being disputed. Anything better which is under dispute is a contingent liability. Contingent liability are always shown as a footnote. So when we prepare a balance sheet, it is shown as a footnote. इतना पहले comfortable, ठीक है? लेकिन first part, first NTM. Any item which is under dispute, like any item which is under dispute, like workman compensation, legal claim, any item which is under dispute, like workman compensation claim, legal case which is under dispute, is in the nature of contingent liability. Contingent liability and therefore it is shown as a footnote. This much comfortable? Okay, let's लेकिन next point NTM 2, calls in arrear are always subtracted. Calls in arrear are always subtracted from share capital to get paid up capital. The two items we have discussed till now. Otherwise it's normal. अभी एडवांस टैक्स मैंने डिस्कस नहीं किया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डिस्कशन नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है? कंफर्टेबल? Even today I am not focusing on notes. Today I am just focusing how to prepare P&L and balance sheet. Next class में जब when we do the big question, we will be taking the notes also. ठीक है? चलिए, let's take question number 12. When you are preparing in exam, right? Please remember, I know first you used to prepare P&L, but first you should always start with balance sheet. Reason? जब आपको नोट्स का नंबरिंग करना होगा, सबसे पहले बैलेंस शीट आता है. किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पे पहले बैलेंस शीट होता है और फिर P&L होता है. मीन्स आपको अगर नंबरिंग करना है तो पहला नंबर हमेशा शेयर कैपिटल का आएगा. You may ask sir, why balance sheet first? If you remember in class 11, the first entry which you used to pass in journal was cash account debit to capital. That was the entry of balance sheet. तो कभी भी जब आप बनाएंगे सबसे पहले बैलेंस शीट बनेगा. इट मीन्स अगर मुझे नंबरिंग करनी है और नोट्स की तो फर्स्ट नंबर विल ऑलवेज बी ऑफ लाइबिलिटीज, देन विल बी ऑफ एसेट्स. इसका मतलब शेयर कैपिटल नंबर 1, लेट्स से रिजर्व नंबर 2, लेट्स से लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 3. तो नंबरिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट.
So when you're attempting an exam, the best trick is your examination sheet is simultaneous. Attempt the question on the simultaneous sheet. This sheet reserved for liabilities. So you remember it is Shri, Nath, Chalalanka, Chalanka. Shareholder funds, non-current liability, current liability. Because जब mind में format fix होता है ना, it saves your time, right? Here only assets, non-current, current. Turn the sheet, right? P&L, RO, and all the expenses, and make all your notes here, all assumptions here, so that you know this question will be at least in 4 or 5 pages. ठीक है, एग्जाम में क्लियर हो गया. इवन आई एम डूइंग एग्जैक्टली इन दैट फॉर्मेट. ठीक है, ये फर्स्ट पेज आई एम रिजर्विंग फॉर लाइबिलिटीज, सेकंड पेज ओनली फॉर एसेट्स, थर्ड पेज ओनली फॉर P&L. आज क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट. ऊपर कंपनी का पहले नाम दीजिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? लिखिए. राइट एट द टॉप सोना लिमिटेड. बैलेंस शीट as at or as on 31st March 14. Give the heading, particulars, notes, and amount. Then we have equity and liabilities was the heading. You can write the broad heads. It was right. Then second heading you can leave because share application money exam में नहीं आएगा. ठीक है, that format you should only write अगर examination में he says draw the format. Otherwise, second heading is not required. Don't waste your time. Non-current liability and then current liability. Maximum items हमेशा current liability के ही एग्जाम में आपको मिलेंगे. Under shareholder funds, we had S and R. Here we had long, right, and here we had short toss. मैंने लॉन्ग के आगे डॉल नहीं लिखा बिकॉज जनरली उसके आइटम्स मिलते नहीं एग्जाम में. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एटसेट्रा एग्जाम में रेयरली आता है. तो एटलीस्ट दीज आर दी मिनिमम बेयर मिनिमम हेडिंग्स जो आपको बनाने ही बनाने हैं. शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड रिसीवेबल्स. अगर किसी में आइटम नहीं होगा वो जीरो आ जाएगा, टेंशन नहीं है उसमें. कंफर्टेबल यहाँ तक, इजी. नेक्स्ट पेज. When we come to next page, right at the top, continued. So it's a vertical balance sheet, right? Write the assets. Under the assets, you have two headings: non-current asset, and we have current assets. Below, you can write fund. D you can always ignore. D is not in our course. Deferred tax asset हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसका हेडिंग आप नहीं भी लिखें तो भी चल जाएगा. Sir, that's not a big portion of BCom. Deferred tax asset, deferred tax liability is not there. Account, it is accounting standard 22. Then here we did commissioner, income tax, cash, and so on. प्लीज जल्दी नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसलिए लेट्स रिलैक्स. और इसमें टाइम लगता है, एटलीस्ट हाफ एन आवर लगेगा इसमें. डोंट बी इन अ हरी. और फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो एटलीस्ट 45 मिनट्स लगेगा इसमें. इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ये लेंदी हो गया है और इसी रीजन से एग्जामिनर इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस नहीं पूछता है.
अर्लियर देयर यूज्ड टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स, लेकिन अब फॉर्मेट्स की वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट नहीं आती। इतना इजी हो गया। नेक्स्ट थर्ड पेज किसके था अपना? P&L. Again give the name of the company at the top. Right, SPL. Write particulars, write notes, write amount. Income, expenditure. Here the trick was arrow. It was C, P, C, E, F, D and O. And when you will be used to, तो आप easily पहले liabilities पुट कर लेंगे, फिर income पुट हो जाएगा। एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में लीजिए, ठीक है? Yes, can we start now? चलो, tell me first opening stock. You have to tell me. हाँ जी, 70 कितना, क्या करना है इसका? ओपनिंग स्टॉक है। बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ काम आएगा? चेंज इन स्टॉक में। वेरी गुड, दिस वाज आवर चेंज इन स्टॉक। व्हाट वी डू? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। रीजन बेटा, क्योंकि जब आप माइनस करोगे, बिल्कुल गुड, ठीक है? तो ओपनिंग इज हाउ मच? 75 माइनस, तो क्लोजिंग अभी फिगर आएगा अपने पास। नेक्स्ट बेटा परचेज रिटर्न बताइए। राइट, ये सी हमारे लिए इरेलेवेंट था। दिस पी वॉज परचेजेस, टोटल परचेजेस 219 माइनस रिटर्न्स हाउ मच? 10। मिल गया? प्लीज, बहुत स्लो चल रहा हूँ, आई नो आई एम गोइंग वेरी स्लो, बट आई एम नॉट इन अ हरी। एक बार ये फॉर्मेट फिक्स हो जाएगा, इट विल हेल्प यू, स्पेशली ऑनर्स को ये होल्डिंग में भी काम आएगा। रेवेन्यू इज सेल्स, हाउ मच इज सेल्स? 3 lakh. How much is returns? 1500. Comfortable? स्टॉक हो गया बेटा, परचेज रिटर्न हो गया, परचेज एंड सेल हो गया, सेल रिटर्न। वेजेस बताइए किधर? आपको बताना है, हेडिंग बताना है मुझे। वेरी गुड बेटा, शाबाश। वेजेस इज 3000। एक बेटा वेजेस इज 27,000। शाबाश, गुड। डिस्काउंट बताओ बेटा, कहाँ पर? अदर इनकम, अदर इनकम। और प्लीज, अगर एग्जाम में यू हैव अ लेसर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट्स, डायरेक्टली राइट द अमाउंट हियर। तो अगर एग्जाम में टाइम शॉर्ट है तो एग्जाम में नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, अदरवाइज द क्वेश्चन विल नॉट बी कंप्लीटेड। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो नोट्स के चक्कर में, ड्यू टू नोट्स, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर। दिस इज अ रीजन आई एम आस्किंग यू टू डू दिस क्वेश्चन एट लास्ट। You can manage the time. If you have a more time, prepare the notes. If you have a lesser time, your target should be to complete the question. Okay? Examiner may cut 1 mark for the note, but at least he will give you the remaining marks. Okay? चलो, remaining बेटा सैलरी हो गया अपना। फर्नीचर बताइए। बैलेंस शीट में कहाँ पर? एसेट। तो आवर पेज नंबर 2, आवर पेज नंबर 2, फिक्स एसेट। हेयर T, tangible.
10 इजी। चलो आपको सिर्फ प्लेसिंग करनी, नथिंग एल्स। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज सैलरीज, बताइए। 4,500. वेयर बेटा? एम्प्लॉय, शाबाश। एडवांस टैक्स आई टेल यू, छोड़ दीजिए भी। वेयर? Other expenses. वेरी गुड, राइट। अदर एक्सपेंसेस, preliminary expenses, just write it here, I'll tell you the reason. Write in other expenses, I'll tell you the reason later. ठीक है? चलिए, as I told you, P&L appropriation now we don't prepare, we will take it at the last. छोड़ दीजिए अभी। Next, बताओ बेटा। 70. So advance tax I have to explain to you. I have to explain to you preliminary expenses and P&L appropriation. Okay? Share capital amount बेटा, शाबाश 70 बेटा। ओके, विच क्लास बेटा? अकाउंट्स का। आ जाओ बेटा, बैठो बैठो। नेक्स्ट आ जाओ। 70। देन कॉस्ट इन बेटा कितना है? 3000। ओके बेटा। बेटा व्हाट्स योर गुड नेम? हर्ष बेटा, ये सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। कोई नॉर्मल बैलेंस शीट P&L जैसे बनता है, ठीक है। वो आपने क्लास 11 में भी सीखा होगा, ट्रेडिंग P&L फर्स्ट सेमेस्टर में भी सीखा होगा। सिर्फ फ़र्क क्या है बेटा, यहाँ पर हम मुकेश अंबानी की बना रहे हैं बैलेंस शीट। अब मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो कंपनी की बनेगी, कंपनी की बनेगी तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो थोड़ा सा फॉर्मेट का फ़र्क है। तो कल मैंने इसकी कुछ ट्रिक सिखाई थी, ठीक है। पूरी क्लास का बैकअप आपको मैं क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है, कैसे लेंगे। तो आज अगर कोई दिक्कत है मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, पेज 19। मैं बेटा आपका नाम भूल गया, सॉरी। तो काइंडली हेल्प, ठीक है, थैंक यू। तो अरुणिमा, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, पेज 19, राइट। Now I'll just tell you what we're doing. I have just bifurcated to 3 pages. I have told the initially that when this question comes, kindly do on simultaneous sheet. First only reserve for liabilities. So we have reserved this for liabilities, right? ये वो क्लास 12 में जो पतली वाली बुक आप याद करते थे, ये उसकी हेडिंग्स है, इक्विटी, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा, राइट। सेकेंड पेज आई हैव रिजर्व फॉर एसेट्स, थर्ड पेज आई हैव रिजर्व फॉर P&L। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। कल हमने P&L किया था, आज मैं P&L और बैलेंस शीट को मिक्स करके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर होगा भी आपको, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए बताइए डेटर्स कितने अमाउंट है, बताइए। 27। बताइए डेटर्स कहाँ पर आते हैं? एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट्स में डेटर का नाम अब क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल्स। आजकल मैंने ट्रिक सिखाई थी याद करने की, कमिश्नर, इनकम टैक्स, कैश हो गया। सो ये इसके हेडिंग्स मैंने मार्क कराए थे कुछ, जिससे कि आपको हेडिंग्स याद हो। बताइए जी, ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा बेटा अपने पास? 27,500। नेक्स्ट बताइए क्रेडिटर्स। वेरी गुड, ट्रेड पेबल्स। लायबिलिटी साइड कितना अमाउंट है? 31। आप बेटा काम करिए, अरुणिमा ये काम करो, आई एम वेटिंग। फर्स्ट यू जस्ट कॉपी दिस, अदरवाइज आप क्लिक नहीं करेगा, आपको लूज द क्वेश्चन। क्विकली कॉपी करो सर। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लायबिलिटी साइड बेटा।
SH is shareholder funds, S is share capital, R is reserves and surplus. बेटा वो 70 है और -3, 70 शेयर कैपिटल का है, 3 कॉल्स इन एरियर का है। नॉन करंट लाइबिलिटी नीचे L है, L इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, CL इज बेटा करंट लाइबिलिटी। इसका ट्रिक बताया था शॉर्ट टॉस, T इज ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स। हो गया इतना, कॉपी हो गया। नेक्स्ट पेज पे बेटा लिखिए एसेट साइड, करिए नेक्स्ट पेज देखिए एसेट्स। नॉन करंट हर चीज का ट्रिक बताया था, फंड लो, FND आई हैव रिमूव क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, D होता है डेफर्ड एसेट, LO, ठीक है। F के नीचे 4 हेडिंग होते हैं, टिक्की, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। P और I में लिख लेते हैं। जो इसमें T का अमाउंट आ रहा है दैट इज फर्नीचर फिटिंग्स क्वेश्चन का, और जो नीचे T आ रहा है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स का अमाउंट है। By the time you can start completing it. Copy it. Hush through. That is cash and cash equivalent. जिसमें आइटम नहीं होगा वो हम लोग जीरो कर देंगे। Then there's a trick of P&L. Now P&L is known as statement of profit and loss. कॉपी करिए इसको। कंपनी का नाम है सोना लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इनकम। इनकम का ट्रिक मैंने बताया था, RO जो घर में लगता है। इसका था कैन पार्लियामेंट, चेंज, एजुकेशन फॉर डेली ऑफिसर्स। तो आपको एक्सपेंडिचर के हेडिंग याद रहेंगे फिर, CPC EFDO। कॉस्ट इन एरिया 3000 ना, $340 sales, $1500 is sales returns, 3000 discount received, 219 minus 10 is purchases, 75,000 is the opening stock, and employee made 27,000 is wages, 4,500 is salaries, and O4050 is bad debts, and 3,000 is preliminary expenses। ये मैंने समझाया नहीं है अभी समझाऊंगा। Yes guys, now can we move? चलिए, so let's quickly recapitulate। स्टॉक हो गया है, परचेज रिटर्न हो गया है, परचेज हो गया है, सेल हो गया है, सेल्स रिटर्न हो गया है, वेजेस, डिस्काउंट, फर्नीचर, सैलरीज, एडवांस, टैक्स आई हैव लेफ्ट, वी विल बी डिस्कसिंग एंड देन विल डू इट। अभी नहीं किया। बैड डेब्ट्स हो गया, प्रीमियम एक्सपेंसेस हो गया, P&L एप्रोप्रिएशन अभी हमने छोड़ दिए है, अभी करेंगे। शेयर कैपिटल हो गया, कॉल्स इन एरियर, डेटर, क्रेडिटर, डन। प्लांट मशीनरी, टेल मी, स्पीक अप गाइस, यू हैव टू टेल मी। हाँ जी, राइट, वेरी गुड। अल्टीमेटली आई नो द टॉपिक बट यू हैव टू टेल मी सर ये यहाँ पर आएगा। टेंजिबल, राइट, देन वी हैव राइट इट सेपरेटली बेटा। रीजन आपको डेप्रिसिएशन भी इसमें माइनस करना होगा तो हमेशा अलग लिखिएगा, ठीक है। कैश एट बैंक बेटा बताइए। वेरी गुड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा 66,200। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क प्लीज, इंटेंजिबल 2800। तो प्राइमरीली 3 आइटम है जो हमने अभी छोड़े हुए हैं, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दी एडजस्टमेंट्स।
please ensure, I'm just telling you my experience of DU, adjustments always write with different color pen. No examiner checks the entire question. You only check the adjustments. Write adjustment with different color pen. because वो immediately अपने solution से match करते हैं. If it matches, they give the marks. So that it become very easier for them also to identify ये बच्चे ने adjustments करा हुआ है. तो हमेशा different color pen से करिएगा adjustments को. ठीक है, चलिए. Closing stock कितना है बेटा अपने पास? 88. बताइए. अब ध्यान रखिएगा, हर एडजस्टमेंट विल हैव अ डबल इफेक्ट. ठीक है, चलिए. क्लोजिंग स्टॉक क्या बैलेंस शीट में आएगा? किधर आएगा? इन्वेंट्रीज में आएगा. वेरी गुड. आई इज इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, वन इफेक्ट. और साइमल्टेनियसली इसका सेकेंड इफेक्ट भी कर दीजिए. राइट, अदरवाइज इसमें आपका एक डाउट हमेशा होता है. इस टॉपिक में हमेशा डाउट है जो क्लास 11 से चलता है, सब बैलेंस शीट मैच नहीं हुई. बैलेंस शीट इसलिए मैच नहीं होता है, यू डोंट डू द डबल इफेक्ट्स. चलिए, P&L. P&L में दिस वाज चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. 75 माइनस 88 बेटा. डबल इफेक्ट डन, इजी. कंफर्टेबल. चल नेक्स्ट बताइए क्या है अपने पास? डेप्थ नहीं, मेक अ प्रोविजन फॉर जस्ट राइट. आई नो अभी प्रॉफिट निकालना है, टैक्स लगेगा, आई नो दैट. एटलीस्ट जस्ट राइट सो दैट यू रिमेंबर कि यू हैव टू डू दिस. ठीक है, जस्ट राइट इट हियर. लेस, जस्ट सी हाउ आई एम डूइंग इट. लेस प्रोविजन फॉर टैक्स. यू रिमेंबर, यू हैव टू डू इट. इट विल हेल्प यू. मैंने भी अमाउंट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ इंग्लिश में इसको मेंशन कर दिया. दिस विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन कि यस दिस फिगर वी हैव टू डू इट. बट टेल मी, इसका वन इफेक्ट होगा, सेकेंड इफेक्ट भी होगा? सेकेंड इफेक्ट. प्रोविजन, जस्ट टेल मी योर पेरेंट्स पे द टैक्स आफ्टर 4 years और विद इन 1 year. इट्स अ शॉर्ट टर्म. सो प्रोविजन ऑलवेज कम्स इन द लायबिलिटीज अंडर द हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. तो प्रोविजन ऑलवेज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. मुझे पता है कि अभी अमाउंट नहीं आया है, लिखने से सिर्फ ये फायदा है कि हमें याद रहेगा कि मुझे ये करना है. ये तो कई बार एग्जाम के प्रेशर में हम भूल जाते हैं. अब एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरा डबल इफेक्ट हो गया. अब सिर्फ मुझे अमाउंट डालना है, मैच कर जाएगा. इजी यहाँ तक कंफर्टेबल. चलो नेक्स्ट बताइए बेटा, कितना है बच्चे? 15%. प्लांट मशीनरी का वैल्यू बताइए बच्चे. 20,000. उसका 15% बोलो बेटा. वेरी गुड. क्विकली लेट सब्ट्रैक्ट बेटा हियर 3,000. सेकंड इफेक्ट बताइए. वेरी गुड. एक्सपेंडिचर में, वेरी गुड जी. एक्सपेंडिचर में किधर बेटा? डेप्रिसिएशन. सिर्फ अब एक सिंपल चेंज हो गया है. पहले अर्लियर you can write depreciation anywhere on the debit side. Now you have to write under the specific heading. Now examiner will be checking the total of each heading. वो check करेगा E का total, D का total. Now that is the major problem. Ready? Over. चलिए. What is the next part? This will discuss later. भूल जाओ. Why I am saying भूल जाओ, ये P&L appropriation में आता है. अभी appropriation we have not discussed. ठीक है. What is left now? This we have just discussed. I'm just repeating for you guys. Anything which is under dispute. If you have seen a recent movie, I think Jolly LLB 2. Even there the legal case was pending. So as long as that case is pending, it becomes a contingent liability for a party who is supposed to pay. So it is shown in the footnote. Right? Footnote means we'll be showing it below the liability side. Just write it here as a note. पूरी बैलेंस शीट की लास्ट में नहीं आएगा? पूरी बैलेंस शीट आएगा बेटा, बिल्कुल. सॉरी, ऐसा नहीं है. राइट इट हियर. नोट. जस्ट राइट दिस सेंटेंस अगेन. वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम disputed. How much? 25,000. Below the balance sheet, it means after the assets.
क्विकली टेक 1 minute, रिवाइज द क्वेश्चन, देन विल स्टार्ट। एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए। देख लीजिए हमने सारे आइटम्स ले लिए हैं। बिकॉज ये टॉपिक कोई टफ नहीं है और थोड़ा बोर भी है, बिकॉज ये फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है। चलिए, रेडी नाउ? चलिए, लेट्स नाउ डू द P&L। नाउ यू विल हेल्प मी, गिव मी द टोटल ऑफ इनकम साइड प्लीज। 3 लाख 338,500 प्लस 3 बेटा, that is 341,500। कॉल इट ए। करिए, रिलैक्स होकर लिखिए। Give me the total of expenditure side। 237 बेटा 550। वेटिंग एक बार देख लीजिए। टोटल ठीक है 237। आपने वो 3000 डेप्रिसिएशन वाला डबल तो नहीं कर दिए? हो गया? चलिए नाउ इनकम माइनस एक्सपेंस इज PBT। व्हाट इज PBT? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करिए माइनस प्लीज। 103,950। 50% टैक्स प्लीज। 51,975। बेटा पैट आ गया अपने पास 51,975। अमर जी मत्था कब टेक रहे हो मंदिर में हैं? कहाँ रश था? मंदिर तो बेटा 1 बजे खुल गया था मेरा। मत्था टाइम पे टेक करो। चलो 5196। बेटा क्लास हमने कल डिसाइड की थी, याद करिए। येस्टरडे वी हैव डिसाइडेड कि हम क्लास 1 o'clock स्टार्ट करेंगे। भाई साहब क्लास में ना आरती में बोला गया था ये कि कल की आरती थोड़ा आधा घंटा पहले स्टार्ट होगी, बोला गया था। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, आपका ध्यान कहीं और होगा। आरती में होता यही है। कल नेक्स्ट वीक जो आरती स्टार्ट होगी ना, ध्यान रखना। चलो जोक सपोर्ट हो गया था क्लियर। अब इसके बाद तक करना, अभी समझ में नहीं आएगा। 10 मिनट दे मुझे। 51,975 ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए ये प्रोविजन फॉर टैक्स का बेटा हम लोगों ने अमाउंट लिखना है कहीं? चलिए लेट्स नोट डाउन बेटा। 51,975। अब बेनिफिट क्या हुआ एटलीस्ट याद रहेगा मुझे, मिस्टेक नहीं होता अपने को। इतना कंफर्टेबल। नाउ यू काइंडली टेल मी व्हाट डज प्रोविजन फॉर टैक्स मींस। इसका मतलब क्या होता है? Brilliant, बिल्कुल ठीक है। It means we are assuming कि we will be paying this much amount of tax. When you will be studying in your higher studies income tax, you will realize that there is some tax we pay in advance, right? Why we pay in advance? I'll take a very easy example. For example, me. I know that my batches will be there. There will be a lot of students who might be coming in the month of March. So logically there may be some income which I may generate in the month of March. So government says sorry, we will not wait till the July. You keep on paying some tax to us in advance. Reason अगर हम जुलाई में पे करेंगे तो गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट का लॉस है, तो गवर्नमेंट विल गेट दैट मनी लेटर. तो गवर्नमेंट हैज मेड सम प्रोविजन वेयर बाय यू आर सपोज्ड टू पे एडवांस टैक्स. It means out of this 51,975 I have already paid some tax. Just see the trial balance. How much is the advance tax?
इट इज एग्जैक्टली लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आप करते थे पहले. 5,000. हाउ मच? 5,000. इसका मतलब है कि मेरा नेट टैक्स इतना नहीं है. 5,1975 में से आई सब्ट्रैक्ट एडवांस टैक्स. तो एडवांस टैक्स इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोविजन टू शो द नेट टैक्स. हाउ मच? 5,000. One caution, कुछ books में, in some books they have not subtracted from here, they have shown on the asset side under the short term also. Balance sheet total same आएगा, match कर जाएगा आपका, but right treatment is to show the net of tax. ये बात क्लियर हुआ? इसको लिखिए NTM. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ मैं, जैसे अंडर द हेडिंग NTM not to be missed. NTM देखिए NTM. Advance tax are always subtracted from provision for tax. Advance tax is always subtracted from provision for tax so that we can get net tax liability. फर्स्ट क्लास में आओगे नहीं, दूसरी क्लास में आप आएंगे, अब कैसे समझ में आएगा? क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन की बात पे करना भी आप. इतना पहले कंफर्टेबल है जी? चलिए अब बेटा adjustments में अगर provision for tax नहीं दिया होता, पॉसिबल नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है. कंपनी में 101% है. अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा बेटा. 101%. I am telling you, yesterday also we had a discussion. Out of lot of adjustments, they will be giving you 7 to 8 adjustments. Fix है. Check any question, right? Closing stock पक्का होगा. Depreciation 100% होगा. Provision for tax 100% होगा. Proposed dividend 100% होगा. राइट ये 4 आइटम गारंटेड एग्जाम में, ठीक है. एडिशनली दे कैन गिव यू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, बट टैक्स, डिविडेंड, क्लोजिंग स्टॉक हैज टू बी देयर. उसके बिना कंपनी का क्वेश्चन बन नहीं सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं. सर इफ इन केस नहीं होता तो ये एडवांस टैक्स एसेट साइड. बिल्कुल बेटा, अगर ये नहीं होता तो ये एसेट साइड पे शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस में आता. ठीक है बेटा, कंफर्टेबल है यहाँ तक? चल अब आगे आते हैं. अब बताइए सिर्फ एक चीज रह गई है, कौन सा? P&L एप्रोप्रिएशन. अब काइंडली डोंट राइट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. डोंट राइट. मोस्ट ऑफ यू हैव डन इन क्लास 12 पार्टनरशिप, राइट? पार्टनरशिप में वी यूज टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अभी लिखना नहीं प्लीज, डोंट राइट नाउ. क्लास 12th में P&L एप्रोप्रिएशन वी यूज टू प्रिपेयर इन दिस फॉर्मेट. It was a T-shape, right? What was appropriation? It is just a distribution to partners. ये तब बनता है, yesterday I told you, जब एक से ज्यादा ओनर होते हैं कंपनी में. बिकॉज वी हैव मोर देन वन ओनर, तो कंपनी में ये मैंडेटरी है, राइट? P&L एप्रोप्रिएशन में इट इज लाइक ओपनिंग प्रॉफिट प्लस करंट ईयर प्रॉफिट. जैसे बैंक का बैलेंस है, बैंक में अगर 4,000 ओपनिंग है, 1,000 आपने ऐड किया, टोटल 5,000 आना चाहिए. इस क्वेश्चन में चेक करिए व्हाट इज दी ओपनिंग P&L. चेक करिए, ट्रायल में दिया हुआ है. 14,000. ओपनिंग इज 14. व्हाट इज द करंट वी हैव अर्न्ड? 5,197. प्लीज लिखना नहीं अभी, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर. एंड मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड सेपरेटली टू प्रिपेयर, स्पेशली फॉर ऑनर्स स्टूडेंट. आई एम सेइंग फॉर ऑनर्स. ये क्वेश्चन नंबर 2 में आता है. बिग क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स और 7 मार्क P&L appropriation and 8 marks valuation of shares. तो maximum students who have done the entire course, I always advise them, please don't attempt a full-fledged question, because full-fledged question में time लगेगा. There is a possibility of making a mistake. The better approach is what? Attempt valuation of shares, which is very easy, right? Attempt this P&L appropriation. तो अगर आपको चॉइस मिले तो बड़ा क्वेश्चन नहीं करना,
छोटा करना, टाइम बचेगा और प्लस गलती होने के चांस कम होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये कंफर्टेबल है। कंपनी में कोई सैलरी नहीं होता, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता है। कंपनी में P&L appropriation only can have 3 headings. R.D. Burman. R is reserves, D is dividend, and B is a balance. Right? You guys are very lucky. Now even reserves condition has been removed. Under Companies Act 13, now it is not mandatory to transfer the reserve. Earlier it was. पहले रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी होता था, एक रेट होता था, वो मैंडेटरी था, अब वो हट गया। इट मीन्स नाउ यू विल ट्रांसफर टू रिजर्व ओनली इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज इरेलेवेंट है। आप चेक करिए क्या इस क्वेश्चन में कहीं रिजर्व लिखा हुआ है, चेक इट, नहीं है, इट मीन्स वी आर लकी इनफ। अगर लिखा होता ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, देन वी डू इट, अदरवाइज वी आर नॉट। दिस इज कंफर्टेबल। What is D? D is a dividend. Now dividend, you tell me we only pay to equity shares or both equity and preference? So dividend means both equity and preference. Tell me, just see what is the rate of dividend here. Relax होकर चेक करिए, कॉपी नहीं करिएगा अभी, जल्दी नहीं है, ठीक है? Okay, 15%. Company always pay dividend on the paid up capital. पेड अप मीन्स जितना आपने पे करा होगा। हाउ मच बेटा वी हैव पेड? 63,000। नहीं बेटा 67,000। 70 minus 3 कितना हो गया? ऑल दीज पॉइंट्स वी विल बी राइटिंग इट ऑल्सो अभी लेटर। 70 minus 3 कितना हो गया? 67। इट मीन्स कंपनी हैज टू पे अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन 67,000। कितना होता है ये बताइए? 10,000। ओके, इट बिकम्स बेटा 10,050। इजी, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। टेल मी डिविडेंड, इफ यू all are the shareholders, I am the company, I am giving you 10,050. For me it is appropriation, for you it's an income. So under the Income Tax Act you are supposed to pay tax on that, but there is a provision in income tax that dividend is exempt in the hands of a shareholder. इसका मतलब आप सबको इस पे टैक्स नहीं देना, you're not supposed to pay the tax. अब government was saying if you guys are not paying the tax then someone has to pay, because why? Government will be making their own laws, so government has passed on this liability to a company. So Reliance, Infosys, Wipro, TCS, any big companies, if they pay a dividend, it is exempted in the hand of a shareholder. हम इंडिविजुअल को पे नहीं करना, कंपनी को उस पे पे करना होता है, उसे कहते हैं CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, नोन एज वन मोर नेम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, उसका रेट क्या है? उसका बेसिक रेट इज 15%। बेसिक रेट, दिस पॉइंट विल नेवर बी गिवन इन द एग्जाम, इट्स अ हिडन फिगर। यू आर सपोज टू नो दिस रेट एंड अप्लाई इट, राइट? 15%। इसके ऊपर लगता है सरचार्ज। ओके, अर्लियर दैट वाज 10%, नाउ इट इज 12%। 15% का 12% करो, कितना आएगा? 15% का 12%। जल्दी नहीं है, सिर्फ रेट निकाल रहे हैं। 1.8 कह सकता हूं मैं। रिलैक्स रिलैक्स, डू इट। 15% का 12% करोगे 1.8 आएगा। 1.81। यस, अरे परसेंटेज है नलायक, तो 12 पे 100 नहीं करोगी इसको? अच्छा चलो जी, मैं करके दिखाता हूँ। देखो 15/100 का बेटा जी 12/100 करो जरा, ठीक, कितना आएगा? 180 आएगा बेटा, ठीक है? करो करो 100, ठीक है? ये एक 0 कट गया, 0.018 आ रहा है आपके पास। सर इसका 15%, इसका 12%। रिलैक्स 15% कंफर्टेबल है, ठीक है? इसका, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, 15 रेट, ओनली 15।
15 का अगर आप 12% निकालें कितना आएगा? 1.8 आएगा। आप कंफर्टेबल है बच्चे? इजी? चलो गुड। बेटा गवर्नमेंट में इसके ऊपर लगता है सेस, इसे कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस। ठीक है, या जब टैक्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। वो रेट बेटा 3% है। 15 का अगेन 15 का लगेगा। ठीक है, 15 का जरा 3% निकालिए कितना आएगा? 0.45। मैं आपको डायरेक्टली भी रेट लिखवा सकता था, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने ऐड किया है। इसको जरा ऐड करिए, सबको ऐड करिए बेटा। 15 का रेट प्लस 1.8 प्लस 0.45 कितना है? 17.25। क्लियर? पहले अर्लियर दिस 12 was 10%। अर्लियर दिस 12 was 10%। तो 16.5 का फिर 3% लगता था, फिर आता था 16.995। राइट, बट अल्टीमेटली अब क्या लगाना है? टोटल का लगेगा। पॉइंट क्लियर हो गया तक? बिल्कुल। इतने पॉइंट लिखिए पहले। फर्स्ट पॉइंट, नोट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, NTM फर्स्ट पॉइंट। In the examination, if P&L appropriation is to be prepared, in the examination if P&L, ये तो लिख लो चॉइस आपकी। In the examination if P&L appropriation is to be prepared, then first reserve needs to be subtracted. Reserve needs to be subtracted if it is given. Reserve needs to be subtracted if it is given. Next, dividend is to be given on equity and preference shares. Next point, dividend is to be given on equity and preference shares. Next, on each and every dividend we need to pay corporate dividend tax. We need to pay corporate dividend tax, also known as dividend distribution tax, which is 15% plus 1.8% plus 0.504%। ये 12% है, ये 3% है। 4.5 नहीं आएगा बेटा, वो 16.8 का है, मेरी मिस्टेक थी, वो गलती वही है। 15 plus 1.8 कितना है आपके पास? 16.8 का लगता है हमेशा 3%। राइट, 3% इज ऑलवेज ऑफ द टोटल। तो नेट करिए कितना आएगा? 16.8 प्लस 0.504 ऐड करिए 17.304%। You can even learn the net rate, that's your choice। 17.304%। 15 plus 1.8, 16.8 plus 3%। इतना इजी, क्लियर? चलिए मेक दिस अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन जल्दी से बनाइए। ये कितना आया था अपना? 1058 था शायद। हाउ मच वाज द डिविडेंड बेटा? 1050। ओके, करिए, लिखिए इसको। डिविडेंड टू प्रपोज डिविडेंड टू CDT
at 17.304%. शेप नहीं बनाई। अभी आप टी में बनाइए बेटा, आई नो टी में नहीं बनता है, सिर्फ नॉलेज क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बाद इमीडिएटली विल कन्वर्ट इट. डी इज डिविडेंड बेटा, डी इज डिविडेंड. $10,050 का रेट निकालिए 17.304%. हाउ मच इट्स कमिंग? करके देखना, कैलसी में करो. 10,050 का बेटा 17.304. 17. हर डिविडेंड पे आपको टैक्स देना होता है बेटा. 17.052 पॉइंट्स मैंने ग्रो कर दिए कि 1739. ये क्लियर है? हिट बेटा अगेन, नो इशू. 10,050 क्लियर है बेटा? ये 2 PV के बता रहा हूँ पहले वर्ड. टू प्रपोज डिविडेंड बेटा. फर्स्ट टेल मी 10,050 इज परफेक्टली क्लियर टू एवरीवन. आई हैव जस्ट मेंशन बेटा कि आपको हर डिविडेंड पे टैक्स देना मैंडेटरी है. ठीक है, टैक्स का रेट कितना आ रहा है? 17.304. 10,050 का 17.304% करो सर, कितना आएगा ये देखिए. 10,050 बेटा इंटू 17.304 राइट परसेंटेज 1739. क्लियर? यहां तक कंफर्टेबल है? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो दिक्कत आएगा. इतना क्लियर हो गया? चल, नाउ कैन वी गेट द बैलेंसिंग फिगर प्लीज? 14 प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस. 14,000 प्लस 51,975 माइनस 10,050 माइनस 1,739. टेल मी द बैलेंस प्लीज. बोलो बेटा कितना आ रहा है? 54,186. देख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, पहले जल्दी नहीं है, पहली बार कर रहे हैं. P&L अप्रोप्रिएशन हर क्वेश्चन में बनेगा हमारा, यू शुड नो दिस. अब बेटा C इज कॉर्पोरेट, D इज बेटा डिविडेंड, T इज टैक्स. तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इसको बेटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कहा जाता है. बेटा जो डिविडेंड आया है 10,050, डिविडेंड चाहे इंट्रीम हो, चाहे प्रपोज हो, चाहे वो इक्विटी का हो, चाहे वो प्रेफरेंस का हो, हर डिविडेंड पे टैक्स देना मैंडेटरी होता है. जो टोटल डिविडेंड आएगा उसका 17.304% है. ब्रेकअप आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने वो ब्रेकअप सिखाया था आपको. इतना पहले क्लियर है? अब एग्जाम में आप इस वे में नहीं बनाओगे, ये टी शेप है, ये पहले बनता था. एग्जाम में इट शुड बी नाउ प्रिपेयर्ड इन द वर्टिकल फॉर्मेट. वर्टिकल फॉर्मेट इज वेरी इजी. एड दिस एंड सबट्रैक्ट दिस. तो आई हैव जस्ट गिवन यू इन टी शेप कि आपको याद रहेगा कैसे बनाया था आप लोगों ने. तो एग्जाम में द राइट वे इज दिस. लिखिए हेडिंग P&L appropriation. Opening balance 14,000. Current year PAT 51,975 less. You will always remember the heading less R, D and B. Reserve is not given to us. Dividend is 10,050. CDT is 1,739. We get the balance as 54,186. और ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं. इट्स डैम इजी प्रोवाइडेड नो द लॉजिक एंड द फॉर्मेट. झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, 10 years देख लो यार. आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया इसलिए आसान है. स्टूडेंट्स डिविडेंड लगाते नहीं है, डिविडेंड का रेट निकालना नहीं आता कई बार, या ओल्ड फॉर्मेट में ड्रॉ करके आ जाएंगे. अभी कुछ रिजर्व मैंने ऐड नहीं करे, दे विल ऐड सम रिजर्व आल्सो देयर. बस ये फर्क है.
इतना पहले क्लियर है, इजी। अब यू टेल मी, हर चीज का डबल इफेक्ट होता है बेटा, गारंटीड। तो गारंटीड ये प्रपोज डिविडेंड समवेयर बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार क्विकली रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये बताइए, अब ये हर आइटम का डबल इफेक्ट होना चाहिए, रिजर्व नहीं है तो नो डबल इफेक्ट। डिविडेंड शुड बी हैविंग डबल इफेक्ट। रिजर्व डिविडेंड इज ऑलवेज पेड विद 1 ईयर, तो अगर करंट लायबिलिटी। Corporate dividend tax is also is to be paid in 1 year. It is a part of short-term provisions. आइए अपने पास short-term provisions में सबसे मेन हेडिंग होता है प्रपोज डिविडेंड। कितना है बेटा? 10,050 एंड CDT 17 कितना आया था? 1739। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा, एप्रोप्रिएशन की चीजों का डबल इफेक्ट है ये, ऐसे डबल इफेक्ट। और ऑनर्स वालों के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको होल्डिंग चैप्टर करना है और होल्डिंग में बैलेंस शीट ही ड्रॉ करना है आपको उसमें। इज इट क्लियर? अब बताइए क्या चीज रह गई है? P&L रह गया। P&L का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? काइंडली स्पीक यार, कम ऑन यार, हाँ बोलो। 54। ये क्या चीज है? P&L का अकाउंट। P&L P&L is always a part of reserves and surplus. So P&L 54186 जो एप्रोप्रिएशन की फिगर है 12th में P&L एप्रोप्रिएशन की फिगर अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे। Here is going to balance sheet, it's a company. रिलैक्स होके पहले अभी चेक करिए, एक बार क्विकली चेक करिए क्या कोई आइटम रह गया है। हैव वी टेकन एवरीथिंग? एंड डू द टोटलिंग ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स। That is the provision for general reserve and that has to be added. Certainly, I'll be taking that point, beta. It is in the next question. 13th question is a full-fledged examination question. I'll be taking later. I'm going very, very slow. I'm not in a hurry to complete the chapter in 2 classes. Certainly, it will be there, beta. But I'm just trying to add 2-3 adjustments in every question. Kindly do the totaling, beta. Jaldi se, quickly. Give me the total of liability side. कल फाइनल अकाउंट स्टार्ट किए, आज सेकंड क्लास है उसकी, तो कल की क्लास का भी बैकअप आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड है वो। कल कुछ ट्रिक्स सिखाई थी मैंने फॉर्मेट्स याद करने की। हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है? 211 भगवान का नाम लो और ऐसे साइड चेक करो, तो जिनने अपनी बैलेंस शीट मैच नहीं करती हैं आप लोग। 18170 नहीं कर रही थी मैच? 181 चेक करो भाई, क्यों मैच नहीं कर रही भाई? अगर टोटलिंग में गलती की होगी ना मैंने लगाने खींच के 67 + 54186 नहीं सर इक्वल है। चेक कर लो बेटा। 67,000 प्लस 54186 प्लस 31, इट हैव टू बी सेम यार, डबल इफेक्ट बता रहा हूँ। 31550। अगर सीए करके हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाना नहीं सीखा तो क्या सीखा यार? कम ऑन। 51975 माइनस 5000 प्लस 10,050 प्लस 1739 211,500 एसेट साइड 10,000 17,000
2800 plus 88,000 plus 27,500 plus 66,200 211,500 एग्जैक्टली मैच कर रहा है जी, एग्जैक्टली मैच कर रहा है जी. So I hope the point is clear. I know we have not discussed preliminary expenses point. This I'll discuss at the last. अभी नहीं. Preliminary expense का point में थोड़ा सा controversy है. I'll take at the last. अभी नहीं. Comfortable यहाँ तक? Let's take one more question. आइए question number. चलिए question number 5th. It's full-fledged balance sheet question. Quickly read it. Page number 12. Question number 5th, page number 12. First, quickly read it. I'm giving you time. पेंसिल से मार्क करिए ये आइटम्स किस हेडिंग में आएंगे. शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है. बेटा आगे आ जाओ, किसी का बुक शेयर कर लो. अमर कैसे बैठ जाओ यार, कैसे समझ में आएगा. अगर रियली पढ़ने का विचार है तो देख लो. आपका फायदा क्या बोल रहा हो यार, समझो. क्वेश्चन नंबर 5th. आई एम गिविंग यू 2 minutes. रिलैक्स होके रीड करो. आइटम के अगेंस्ट मार्क करिए किस हेडिंग में ये आएंगे. और जिस आइटम में डाउट है उसे मार्क करिए. कैन बी डिस्कस बेटा. ये वेट करना है, करिए वेट कर रहा हूँ. जस्ट गिविंग 1 minute मोर. ट्राई करो. एक बार आइटम्स आप रीड कर लेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर. और प्लीज रिमेंबर वन थिंग, बैलेंस शीट सिर्फ इस चैप्टर में नहीं आएगी, आपको एमलगमेशन में भी आएगी, जो ऑनर्स प्रोग्राम दोनों के लिए कॉमन है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर के चैप्टर में भी आपको बैलेंस शीट बनाना होगा.
तो अगर आपको बैलेंस शीट में एक्सपर्टाइज है तो बाकी चैप्टर्स भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। नाउ दैट टाइम हैज गॉन कि टी शेप बनाया और बन गया, अब आपको फॉर्मेट्स में जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर्स देखेंगे, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट हैज गॉट स्टक इन प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट बनता नहीं है, मैच नहीं होता है, तो डोंट गेट अ फुल मार्क्स। कि जब से नया फॉर्मेट आया है बैलेंस शीट में बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी याद करने की। तो बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन अलग से एग्जाम में आ सकता है। रेडी नाउ? चलिए, नाउ लेट्स ओपन 2 पेजेस, one for liabilities, one for assets. Give me the name of the company quickly. देखिए, either name of the company, Payal Textiles, write the date as on or as at 31st March 14. Give the headings, particulars, note and amount. Give the broad headings, equity, बताइए लायबिलिटी साइड का ट्रिक क्या था? श्रीनाथ चलेलंका एंड चलेलंका। तो एस से अपने पास क्या था? श्रीनाथ, क्रिकेट प्लेयर था ना जवाहरलाल श्रीनाथ। श्रीनाथ चलेलंका, चलेलंका। आप तो क्रिकेट, एटलीस्ट टू गाइज आई कैन से कि दे नो द क्रिकेट। S is what? Shareholder funds. What was NCL? What was CL? Under shareholder funds क्या था? श्री राम। एम हम लिखते नहीं है, ठीक है? This was long doll and this was short toss. Long doll, short toss. There is no harm in writing all the headings. किसी में आइटम नहीं होगा, 0 लिख दीजिएगा। At least it will save your time. Otherwise you will keep on thinking what should be written, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बेटर सब कुछ लिख दो यार, नहीं होगा 0 हो जाएगा। At least it will save your time. And slowly and gradually जब जितना प्रैक्टिस करोगे you will come to know कि ये आइटम आते हैं, ये नहीं आएगा, तो automatically you get the result. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? आप मुझे बताइए ये कौन सी साइड है? एसेट या लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड में डेबिट आइटम आएगा, क्रेडिट आएगा? क्रेडिट। तो पहले क्रेडिट वाले सारे आइटम प्लेस कर लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। लेट्स स्टार्ट। सिक्योर्ड टर्म लोन्स, बताइए आपके ऑडिट क्या आना चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी। वेरी गुड। नॉन करंट लायबिलिटी में जनरली क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो फर्स्ट यू टेल मी कि सर मुझे ये क्लिक करना है, आई विल फॉलो दैट, क्योंकि एग्जाम में पेपर आपने अटेंड करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10 लाख, ओके। नेक्स्ट बताइए, बताओ कहां पर आएगा? करंट लायबिलिटी, शाबाश बेटा। कहां पर? ट्रेड पेबल्स 11 लाख। बिकॉज इस चैप्टर में सिखाने को कुछ नहीं है, जस्ट कि हाँ ये हेडिंग यहां पर आता है, लॉ में ये लिखा हुआ है। आई कैन ओनली हेल्प यू इन लर्निंग द फॉर्मेट्स। नेक्स्ट प्लीज टेल मी कहां पे आना चाहिए? नॉन करंट, वेरी गुड। डिबेंचर्स 11 लाख 27 लाख। नेक्स्ट प्लीज। अभी सिखाया था मैंने, बताइए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वेरी गुड। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आई हैव टोल्ड यू 3 थिंग्स: प्रोविजन फॉर टैक्स, proposed dividend and corporate dividend tax. This much comfortable? Next बताइए। Share premium comes in reserves and surplus.
बताइए एग्जैक्टली क्लास 12 को मैं रिपीट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। हाउ मच इज अमाउंट? 4,75,000। नेक्स्ट बताइए 20,50,000। बना रहे हो ये अमर? बना लो भैया, बना लो, फायदा है। आई एम टेलिंग यू बैलेंस शीट को सीरियसली लो, इट्स माय एक्सपीरियंस। आस्क योर फ्रेंड टू टेल यू। मैक्सिमम स्टूडेंट बैलेंस शीट की वजह से ही पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। होल्डिंग तो सिर्फ बैलेंस शीट पे डिपेंड है। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं आया, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट होल्डिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज। लोन्स फ्रॉम डेटर्स। अब लॉजिकली क्रेडिट में है। लोन फ्रॉम डेटर मतलब क्या है? आप मेरे स्टूडेंट हो, आप सारे मेरे डेटर है, मुझे आपसे पैसे रिकवर करने हैं। बट लेट्स सपोज सपना इज वेरी रिच एंड आई एम in need of money. I can ask her कि मैडम प्लीज गिव मी सम मनी, आई विल रिटर्न वंस आई हैव द मनी। इसका मतलब मैं अपने डेटर्स से भी तो उधार ले सकता हूँ। किसी इंडिया में या किसी वर्ल्ड में रूल थोड़ी है कि आप डेटर से लोन नहीं ले सकते हैं। तो लोन फ्रॉम डेटर मीन्स आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम माय डेटर्स, जिनको मैं सामान बेचता हूँ उनसे मैंने उधार भी ले लिया है, राइट? सो इट कैन बी, टेल मी आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा है? Current liability. राइट, जनरली डेटर है तो वी एज्यूम कि इट हैज टू बी रिकवर्ड और पेड इन 1 ईयर, ठीक है? शॉर्ट टर्म बोरिंग, बट कोई रूल नहीं है। इफ यू थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म, गिव अ नोट, आई एम एज्यूमिंग इट एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यू कैन टेक इट लॉन्ग टर्म हियर आल्सो, बट ये assumption बेस्ड है, ठीक है? सो लोन फ्रॉम डेटर्स को मार्क कर लीजिए आइटम को एक। I'm repeating, you can assume short term also or long term. You have to write an assumption here. Next बताइए बेटा। Provision for doubtful debt बताइए किस पे बनता है? Debtors पे। Now it's a rule. There is a rule which is given in Companies Act. Any provision which is against an asset has to be subtracted from that asset only. It means debtor less provision, car less depreciation. I know 11th या 12th में आपको सिखाते थे you can subtract or you can show liability side, answer remains same. But अब नहीं, Companies Act का rule है, it has to be subtracted from the asset. इसको लिखिए NTM में। NTM, any provision which is against any asset, like depreciation, doubtful debts, such provisions should be shown as a subtraction from the asset and not on the liability side. तो गलती से भी लायबिलिटी साइड पे मत लिख के आना, ये भी एक मिस्टेक होता है। वी कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, हम चेक करते हैं, अच्छा बैलेंस शीट मैच कर गया, मेरा भी कर गया, क्या डिफरेंस आ रहा है? अच्छा तेरा 10 लाख का आ रहा है, मेरा 1020 का आ रहा है, सिर्फ मैंने प्रोविजन को माइनस नहीं किया, आई हैव रिटर्न द लायबिलिटी साइड। यू बिलीव योर आंसर इज राइट, एग्जामिनर विल नॉट गिव द मार्क्स, बिकॉज उसके सॉल्यूशन में वो कहां पर होगा? वो एसेट साइड पे होगा, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द कंपनीज एक्ट, वहां पर भी आपके मार्क्स नहीं आते कई बार। हम बिलीव करते हैं बैलेंस शीट मैच कर गया, आंसर सही है, दैट इज आवर मिस्टेक, ठीक है? इसको बाद में लेंगे हम। नेक्स्ट बताइए क्या है? ये किस में से माइनस होगा? एसेट में से, बाद में करेंगे इसको बेटा। आगे बताइए कहां पर आएगा बच्चे? ओके जी, आइए इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी है बेटा 3 लाख का,
प्रेफरेंस है 10 लाख। दिस मच कंफर्टेबल। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, पहले ट्रायल के आइटम सारे प्लेस कर दो, तो एटलीस्ट दैट मच कॉन्फिडेंस यू विल बी गेटिंग, हाँ मेरा इतना काम हो गया। ओवर क्विकली नाउ लेट्स मेक अ एसेट एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। लेट्स मेक अ एसेट हेडिंग। और ये टॉपिक सिर्फ बेटा प्रैक्टिस का है, इट्स नॉट कि आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा ये। कंटिन्यूड, इसको दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट राइट एसेट्स अगेन, पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट। non-current assets and current assets. Tell me what was the trick of non-current assets? Fund low. Very good. FNDLO. FNDLO. F के नीचे क्या आता? टिक्की. Very good. TICI. T was tangible, I was intangible, C was capital work in progress and I होता है intangible asset under development. Current assets की ट्रिक बताइए। कमिश्नर, इनकम, टैक्स, कैश, सो। Very easy chapter, you have been doing this since class 11th. डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटी, सिर्फ यहाँ मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट में हेल्प कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। अदरवाइज मेरा इसमें कोई काम नहीं है, आई एम जस्ट हेल्पिंग इन द फॉर्मेट टू यू। यू गाइस ऑलरेडी नो द लॉजिक्स। आर वी रेडी? चलिए, एसेट साइड। एसेट मीन्स डेबिट साइड। फर्स्ट देखो क्या है, एसटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म। कहां पर आने चाहिए बताओ? करंट एसेट। करंट एसेट में कोई एडवांस का है? लास्ट नहीं, लास्ट अदर करंट एसेट्स। एस इज शॉर्ट टर्म एडवांसेस। एल था दिस वाज लॉन्ग टर्म लोन्स, दिस इज शॉर्ट टर्म एडवांस। शॉर्ट टर्म एडवांस का मतलब होता है मैंने किसी को 1 महीने के लिए पैसे दे दिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म, जैसे आपको सैलरी एडवांस मिल जाती है दिवाली पे 3,72,000, बेटा शॉर्ट टर्म। अगर यहाँ बेटा मैं एसटी नहीं देता तो यू कुड हैव प्रिज्यूम लॉन्ग टर्म आल्सो, दैट्स योर चॉइस। बताइए कैश इन बैंक प्लीज। 2,75,000, गुड। एडवांसेस टू स्टाफ भी दिया हुआ बेटा कुछ, क्या मानेंगे इसको भी? एडवांस है, अगेन शॉर्ट टर्म। रिपीट कर दो, एडवांसेस टू स्टाफ का मतलब एम्प्लॉइज। मेरी सीए फॉर्म में मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी एडवांस दे दी, राइट, दिवाली का बोनस एडवांस दे दिया, दैट इज अ शॉर्ट टर्म। स्टाफ एडवांसेस हमेशा शॉर्ट टर्म ही होते हैं, कभी लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट बताइए, टेल मी। इन्वेंट्रीज, वेरी गुड, 50,000। Loose tools, stores and spares. Next please. Right. Generally जब इन्वेस्टमेंट आपके माइंड में आता है, इन्वेस्टमेंट भी एज्यूम लॉन्ग टर्म। तो जब तक मेंशन नहीं है नेवर एज्यूम करंट, ऑलवेज एज्यूम इट एज अ नॉन करंट। यहाँ सी का मतलब है करंट इन्वेस्टमेंट, ऊपर एन का मतलब है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर एग्जाम में बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है, ऑलवेज एज्यूम लॉन्ग टर्म, ओके। आइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आर जनरली प्रिज्यूम टू बी लॉन्ग टर्म ओनली।
कितना दिया आइटम बताइए? 2,25,000. 2,25,000. नेक्स्ट Losses. बेटा, अब लॉसेस भी रिजर्व सरप्लस में ही दिखाए जाते हैं नेगेटिव करके. अर्लियर पुरानी बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पे आता था. नाउ इवन लॉसेस आर शोन इन रिजर्व एंड लॉसेस. हाउ मच? 3 lakhs. Just show the negative side, nothing else. Now nothing comes on the asset side. Next please. Debtors. How much? 12,25,000. 12,25,000. हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. प्रोविजन रह गया था. कितना प्रोविजन था? 20,200. 20,200 is provision for doubtful debts. Preliminary expenses I'll explain to you. वेट करिए, समझाऊंगा आपको डिटेल में. नेक्स्ट बताइए. इन्वेंट्री. प्रिलिमिनरी मैंने अभी छोड़ने के लिए कहा है. आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. 4 लाख. ओके. फिक्स एसेट बेटा. क्वेश्चन साइलेंट. एज्यूम अ टेंजिबल. हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन? 5 lakhs. बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. ये सी, ये रहा. लेट मी रिपीट प्लीज हियर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड वर्क इन प्रोग्रेस? So work in progress is of inventories which Shabash. the company trades in, and capital work in progress is the manufacturing. Brilliant. Machines. Brilliant. Capital work in progress is like a flyover, so you can say metro work, which is still under construction, long-term projects, right? And work in progress is like, let's go. I've started a chapter. I'm saying it will be completed next week. Work in progress is a trading business. Brilliant. Good. So capital work in progress is अगर मैं यहाँ से C हटा देता, then it comes in inventory. Work in progress is inventory. Capital work in progress is a part of fixed asset. How much it is? 2 lakh. इतना comfortable? Now, last. Finished goods stock. How much? Inventory. 7,50,200. So we had closing stock as well. बेटा क्लोजिंग दिया है अपने को. फिनिश गुड स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक ना बेटा. ठीक है. जब बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है, जब ट्रायल दिया है, आप चेक करो इस ट्रायल में कहीं भी P&L नहीं दिया हुआ, कहीं भी एक्सपेंसेस नहीं है, कहीं भी इनकम नहीं है. एंड देयरफॉर दे आर डायरेक्टली आस्किंग यू टू प्रिपेयर ओनली द बैलेंस शीट. आई जस्ट टेक 5 मिनट्स. इतना पहले कंफर्टेबल हो गया. चेक करो कोई आइटम एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कोई रहा तो नहीं है अपना आइटम एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. अब काइंडली जरा ध्यान से पहले समझना, देन कॉपी. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? यस और नो? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? I hope you must have heard this word. Okay. You must have heard the word like preliminary expenses. You must have heard the word like underwriting, commission, etc. Okay. I hope in class 12th you must have crammed one section in Companies Act section 78 of security premium. शायद जब आपने करा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ होता है. There is a section 78 in Companies Act which tells where security premium can be utilized. Write off करने के लिए. This is very very important in the entire corporate accounts. You will be using in preference. You remember जब हमने preference किया था,
सो प्रेफरेंस में भी काम आएगा, इंटरनल में भी काम आएगा, सेक्शन 78. बट नाउ दिस सेक्शन इज चेंज, इट इज नाउ 52. दैट्स द फर्स्ट थिंग. व्हाई आई एम टेलिंग दैट? सेक्शन 78 में एक लाइन लिखी हुई है, काइंडली लिसन वेरी केयरफुली. It says security premium should be used to write off preliminary expenses, should be used to write off underwriting commission, should be used to write off discount and issue of shares. इसका मतलब ये सारे जो खर्चे fictitious nature के होते हैं, these should be first subtracted from security premium, right? If you don't have security premium, then you go to P&L. It means security premium, preliminary expenses. Tell me in question number 12, was security premium reserve available? Relax होके प्लीज चेक करिएगा जल्दी, लास्ट पॉइंट है बस यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 12 में प्लीज चेक करिए, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल था? रिलैक्स होके चेक करिए, यस और नो. It was not available. If it is not available, then logically what we did, we subtracted in P&L. हमने P&L माइनस कर दिया था. It means all fictitious assets have to be subtracted, right? Guaranteed subtract होगा, लेकिन कहां से? That's the main thing, right? If security premium is this friend, if she is available, I'll first subtract from her. If she is not available, I'll go to the P&L. Question number 12, SPR was not there. But in question number 5th, is SPR there? Yes. Right. How much amount, beta? 4,75,000. Comfortable? How much is our premium expenses? 58,000. 50. We'll subtract from here. You may ask, sir, let's suppose this is 5,80,000. Let's suppose it's 580. If this is 580, no issue. After this, it will be subtracted from P&L. अगर P&L भी नहीं है, it will be shown as a negative figure. It will be shown as a negative figure because it's a fictitious nature. इतना comfortable? Your third doubt can be, मैं repeat कर रहा हूँ एक बार, मैं लिखवाऊंगा भी. Preliminary expenses का first priority SPR होता है. अगर SPR नहीं दिया हुआ है तो P&L, right? You may ask, sir, in question number 5th, we are not supposed to prepare P&L. तो P&L का पॉइंट तो आएगा नहीं. Let's suppose examiner question number 5th में सर SPR हमें नहीं देता. They don't give you SPR. P&L, sir, we are not preparing. Then what we should do? Then it is shown in the balance sheet under the heading other non-current asset. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट की 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, राइट? फर्स्ट पॉसिबिलिटी SPR, नॉट गिवन P&L, राइट? अदरवाइज शो अंडर द हेडिंग अदर नॉन करंट एसेट. अजी क्लियर हुआ? ठीक है, मैं ये लास्ट में नोट लिखवाऊंगा. फर्स्ट लेट्स क्लोज द क्वेश्चन फर्स्ट. आप कर सकते हैं बेटा, लेकिन ये गाइडलाइंस में आया हुआ है. ICAI ने एक बुकलेट निकाला था. There was a lot of confusion regarding this. So they were saying no, don't show as a negative figure, show it on the asset side. ठीक है, बट अभी भी कुछ कंपनीज, आई विल एडमिट टू यू, उसको नेगेटिव करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ओपन छोड़ा हुआ है. ICAI ने एक बुकलेट निकाला था जब ये आया था, तो उस बुकलेट में लिखा हुआ है अदर नॉन करंट एसेट. ठीक है, इसलिए मैंने आपको वहां से बताया कि ये वहां पर अदर नॉन करंट लिखा हुआ है इसके अंदर. लेट्स क्लोज द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल डू इट. बताइए इसमें SPR कितना है अपने पास? 75 माइनस बेटा 50. क्विकली डू द टोटलिंग. लेट्स डू द टोटलिंग जल्दी से. 3 lakh plus 10 13.
शेफाली मैम, कितना आ रहा बेटा डिफरेंस? लायबिलिटी साइड टोटल 86. परफेक्ट 86 बिल्कुल ठीक है बेटा 82,000. एक बार ऐसे करके देखते हैं. 56,50,000 minus 5 lakh plus 2 lakh $4,750,000 200 12,25,000 हो गया मैच बेटा plus 2,75,000 प्लस 55,000 प्लस 372,000 मैच कर रहे हैं जी बिल्कुल. आई नो ये टोटलिंग आप घर में भी कर सकते थे, जस्ट फॉर अ कॉन्फिडेंस पर्पस हैव डन इट हियर, एटलीस्ट यू गेट दैट कॉन्फिडेंस यस क्वेश्चन इज राइट. डन. देखिए लास्ट एनटीएम फॉर टुडे, miscellaneous expenditure. Preliminary expenses. First priority is SPR. Second priority is P&L. Otherwise you will show in other non-current asset. Let's suppose this is 58,000 and this is let's say 1 lakh. So case A will be 1 lakh minus 58 over. Case B, it is 58. SPR not given to us, so it will be taken to P&L as other expenses. So इस पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इससे बेटर है, इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बनवा दिया है कि याद रहेगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजन बहुत आएगा. सर अदर एक्सपेंसेस में माइनस में लिखना. अदर एक्सपेंस का टोटल रहेगा ना बेटा, तो जब आप इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली बेटा वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो अदर एक्सपेंस में बेसिकली ऐड हो जाएगा, मतलब हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस बेसिकली. हाँ जी बेटा बोलो. बेटा बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनेगा. मैंने सिर्फ आज और कल में नोट्स नहीं सिखाए हैं, अगली क्लास से नोट्स सिखाऊंगा. अब बच्चों को फॉर्मेट आ गया अच्छी तरह, बैलेंस शीट बनाना आ गया, तो नेक्स्ट क्लास से नोट्स है क्या, यहाँ से हटेगा, इट विल गो टू नोट्स. पहले बैलेंस शीट बनेगी, सबसे लास्ट में नोट्स आते हैं. पहले बैलेंस शीट आएगी, फिर P&L आएगा और फिर नोट्स आएगा. स्टार्ट नोट से करेंगे, लेकिन बनेगा पहले बैलेंस शीट. जब आप पेपर पे करेंगे पहले बैलेंस शीट, फिर P&L, नंबरिंग ऐसे होती है और लास्ट में नोट्स होते हैं. फिर ये अब आप गलती उसमें कर दोगे तो फंस गए. फिर आप C is 58. If this is not given, this is not given, then show in balance sheet. Other non-current assets. P&L अगर आप नहीं बना रहे हैं, बैलेंस शीट भी नहीं है भाई, अगर लेट्स सपोज आपने अगर P&L नहीं बनाना है, जैसे क्वेश्चन 5 था, यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर P&L और बैलेंस शीट में SPR भी नहीं है, तब क्या करेंगे. राइट, इट मींस दिस केस विल एप्लीकेबल इफ P&L इज नॉट टू बी प्रिपेयर्ड. ओनली बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड बेटा, तब ये काम आएगा आपको. So I'm just giving you one homework and kindly you have almost 5 days to do it here. Kindly do one question. Question number 9th. Your homework is question number 9th.
If you have any doubt in any item, leave it. At least get ready and fill the information. ठीक है? So question number 9 and 6. 6 सिर्फ बैलेंस शीट का है. So I am repeating the homework, please. Question number 6 is the homework. Question number 9 is the homework. I am not saying you will be able to do everything. At 80% हो जाएगा. Bring in the class incomplete question. We can complete in the class. It will save our time. ठीक है? And then we can start notes to account on Saturday. ठीक है? Thank you. और जिनका अगर जो क्लास कल का मिस हुआ है, इंटायर क्लास इज रिकॉर्डेड. जैसे ये क्लास भी रिकॉर्डिंग चल रही है अभी. इट इज अवेलेबल हियर इन द कमिंग 5 days. एनी टाइम यू कैन कम, राइट. लेकिन एक दिन पहले मैम को कॉल कर देना, बिकॉज बुकिंग चल रही है इसमें. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास मिस करी हुई है. तो काइंडली गेट योर स्लॉट बुक्ड सो दैट नेक्स्ट डे यू कम, सी इट बिकम ईजियर फॉर यू, और सैटरडे को आप आके चेक कर सकते हैं. जैसे लाइब्रेरी अभी रुकिए बेटा, देखो देखिए.